With steady hands, we build their wings, teach them to dream and do great things, preparing them for skies so wide to face life's wind and soar with pride. A very warm and ebullient namaskar to one and all present here with us on this virtual platform. Today, I, Shefali, accord a cordial welcome to our esteemed principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupma Bhardwaj, heedful and honorable parents, and erudite colleagues. I deem it my pleasure to welcome you all in today's session. A prayer is light in shadows deep, a promise made, a vow to keep, a gentle pause, a call to grace, a journey inwards, a warm embrace. With these words, let us pay our obeisance to the Almighty. I request all of you to take position for the recitation of Namokar Mahamantra. Thank you all. Children are like saplings. With the right amount of love, care, and guidance, they will grow into small, strong, towering trees. In this journey, they require guidance, support, and direction from both parents and teachers to help them prepare for life. Striking the right balance will enable our children to thrive and flourish, ultimately gaining experience, wisdom, and maturity. Yes, dear all, our today's session is also on the same topic, preparing children for life. Children are the future of our nation, and it is our shared responsibility to raise them as happy, positive, and thoughtful individuals who can contribute to build a better society. With these words, I invite Vidyalaya Principal, Ma'am Anupma Bhardwaj, to proceed with the session. Over to you, ma'am. Thank you, Shefali. Thank you so much. God bless you. God bless you. So first and foremost, namaskar to dear parents, colleagues, and lovely kids. So once again, I'm here before you on this virtual platform to share with you all or to discuss with you all about the support, guidance, which we can give to our kids so that they must become the responsible global citizens and worthwhile learners. As all of us are aware that tomorrow we would be having parent-teacher meeting. And in that meeting, we would be discussing the midday examination result. Okay, so tomorrow we are going to discuss about the result. Now the question comes
when the result would be announced of mid-term examination. So as a teacher, as a parent, as a student, how should I take it? मुझे इसको कैसे लेना है? जैसे अगर मैं मिड टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट की बात करूं, तो ये जो रिजल्ट है, ये बच्चे का रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट है पेरेंट्स और टीचर्स का। तो जब भी कोई रिजल्ट आता है, और अगर मैं रिजल्ट से पहले की बात करूं, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और उसके बाद जब असेसमेंट होता है तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो यानी एक प्रिपरेशन है, एक परफॉर्मेंस है, और एक रिजल्ट है। और रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट मेरे हाथों में आ गया, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, तो मुझे क्या करना है? मुझे रिव्यू करना है। रिव्यू क्या करना है? कि मैं अपने रिजल्ट को देखूं, रिव्यू करूं कि जो मंजिल मैंने अपने लिए तय की थी, क्या मैं उस मंजिल के करीब पहुंचा या पहुंची? जो मार्क्स के लिए मैंने जो टारगेट अपना बनाया था, क्या मैंने वो अचीव किए? इसी तरह से टीचर्स ने भी टारगेट सेट किए होंगे अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स भी इस तरह से टारगेट सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो भी रिव्यू करेंगे कि जो हमने टारगेट अपने बच्चों के लिए सेट किए थे, क्या हम उसके करीब पहुंचे हैं? राइट? हाउ फार वी हैव अचीव्ड दोस टारगेट्स? If we have achieved, then again we need to go beyond that. And if we have not achieved, तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की और जरूरत है? देखिए, कुछ बच्चों ने उस टारगेट को अचीव कर लिया होगा, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने उस टारगेट के करीब पहुंचे होंगे, तो यानी उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये पॉइंट हमको देखना है। कुछ बच्चों को कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एज ए पेरेंट टीचर, मैं उस स्पिरिट से इस रिजल्ट को देखूं। ये रिजल्ट मुझे इस स्पिरिट से नहीं लेना है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, हम बच्चों को उलाहना दे, व्हाट द हेल यू हैव डन, यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल। Okay, no, no, no. It's a big no. What we need to do, we need to review that where we went wrong. हमने क्या तैयारी में हमारी कमी रह गई, उस पर सोचें, उस पर विचारें, अपने आप को मोटिवेट करें नेक्स्ट स्टेप के लिए। Whatever has happened, it is over now. अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना है, ताकि मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकूं। मुझे उस पर सोचना है, विचार करना है, उसके लिए अपने आप को एक बार और प्रिपेयर करना है। और ये सबके लिए है, ये टीचर्स के लिए भी है, ये पेरेंट्स के लिए भी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब हम रिजल्ट को देखते हैं तो हम डिसहार्टेंड हो जाते हैं अगर हम अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंचे। बहुत स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है कि जो टारगेट मैंने सेट किया था, मैं उस टारगेट के करीब नहीं पहुंचा, या उसके मैं उससे बहुत दूर रह गया, तो अपसेट होना स्वाभाविक है। लेकिन जो समझदार है, जो वाइज है, वो उसमें से बहुत कुछ निकालते हैं, रिव्यू करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपनी गलतियों को नोट करते हैं। क्योंकि आंसर शीट्स भी आप देख पाएंगे कल। जब आंसर शीट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई, कहाँ कहाँ पर मैंने गलत किया, उसको लिखिए, उसको देखिए, उस पर काम करिए। और ये कैसे होगा? जब आप टीचर्स को सुनेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे,
फिर प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करेंगे, तब मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो। इफ आई एम नॉट लिसनिंग, if I am not revising, if I am not reading, if I am not writing, if I am not completing the assignment, if I am not listening to my parents, if I am not devoting time to self-study, and if I am not revising, and if I am not practicing, then surely I will not reach to my destination. मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है हाथ जोड़कर, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, हम रिजल्ट को एक पॉजिटिव स्पिरिट में लें। लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए रिजल्ट का जानना बहुत जरूरी है। मैंने प्रिपरेशन की बहुत अच्छी, फिर मैंने परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगी और जानना चाहूंगा कि मैंने इतनी प्रिपरेशन करी, मैंने फिर परफॉर्म भी किया, तो इसका क्या रिजल्ट रहा। तो अगर रिजल्ट मेरे पास आता है तो मैं उसको पॉजिटिवली लूं। मुझे शैटर्ड नहीं होना है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। रादर पॉजिटिव स्पिरिट के साथ मुझे अपनी गलतियों को जानना है, गलतियों को सुधारना है, और गलतियों को सुधारने का जो तरीका है वो बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हम बार 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 उस चीज की प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो भी बच्चे अच्छा नहीं कर पाए एग्जामिनेशन में, एक बात तो तय थी कि उन्होंने टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुना, और अगर सुना तो उसको रिवाइज और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तो यानी सुनना, रिवाइज करना, रिवीजन में बात करते हैं हम रीडिंग की, सेल्फ स्टडी की और लिखने की, और उसके बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो डेफिनेटली मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी या पहुंच पाऊंगा जहां की मंजिल मैंने तय कर रखी है, जो टारगेट मैंने अपने लिए सेट किया है। यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर के लिए भी है। ये रिजल्ट केवल बच्चों का नहीं है, हमारा भी है कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमसे कहाँ गलती रह गई, हमने कहाँ पर बच्चे को जो है वो छोड़ दिया। पेरेंट्स से मेरी ये हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि हम अपने टाइम में से टाइम निकाल करके, हम क्या करते हैं कि कई बार जब एग्जाम आने वाले होते हैं तब एकदम से हमें याद आता है अब एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। तब नहीं होगा। अनलेस एंड अनटिल on regular basis, on regular basis we are doing studies, we are preparing ourselves. It should be the never ending process. अगर हम पूरा साल नहीं पढ़ती हैं, जैसे हमारी टर्म शुरू हुई अप्रैल से, एग्जाम हुए सितंबर में, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक मैंने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, but all of a sudden when I got the date sheet and then I started preparing myself for the exams, that will not help me, that will not improve my performance. तो होता क्या है कि हम पेरेंट्स और टीचर्स को भी, टीचर्स ने स्पेशल क्लासेस के लिए बच्चों को कहा, बच्चों ने और पेरेंट्स ने, बहुत पेरेंट्स ने उसको सीरियसली नहीं लिया। जबकि अगर जितने बच्चों के लिए टीचर्स ने वो एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस अरेंज करी थी, अगर वो सभी बच्चे उसको अटेंड कर लेते तो सभी बच्चों की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो जाती। बट समहाउ वी डिडंट टेक इट सीरियसली,
स्टूडेंट्स ने उसको अटेंड नहीं किया, टीचर्स ने बार बार रिक्वेस्ट किया, कॉल किया, बट वी डिडंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि हमारी उस समय प्रायोरिटीज कुछ और थी। और बहुत बारी ऐसा देखा गया है बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ, जब उनके पास रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन तो माहौल जो है वो बहुत ऐसा हो जाता है, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन उसके आसपास हमने कभी नहीं देखा, कभी हम बच्चों के साथ बैठे नहीं, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, आप टीचर की बात को सुनते हो कि नहीं सुनते हो, घर आके रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो, हमने ये बातें नहीं पूछा। और अचानक से बच्चों को हम उस दिन डांटना फटकारना शुरू करते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। एज ए टीचर, अगर मेरा रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि वो मेरा रिजल्ट है ना, मेरे बच्चों का रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, एंड इफ इट इज नॉट अप टू द मार्क, then I am equally responsible. It means I need to see, I need to work on different, I think, tools. मैं डिफरेंट तरीके के बच्चों को इन्वॉल्व करूं, डिफरेंट तरीके मैं अपनाऊंगी या अपनाऊंगा, कि किस तरह से बच्चे वो लर्निंग डोमेन में आ जाए। इसी तरीके से पेरेंट्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये रिजल्ट पेरेंट टीचर्स का है, बच्चे तो वही करेंगे जो हम उनको जैसा करने के लिए बोलेंगे। अगर हमने अच्छा सा एनवायरनमेंट दे दिया, हम स्ट्रिक्ट हो गए, हम डिसिप्लिन्ड हो गए, हमने अपने काम को अच्छे तरीके से कर लिया, देखिए 19, 20, 21 का फर्क रहेगा, बट इतना ज्यादा नहीं that students are not even able to get through. They are not even getting the passing marks. It means somewhere we are responsible. If kids are not listening to us, we are responsible. If kids are not doing self-study, we are responsible. If kids are not behaving properly, we are responsible. And we need to make these students also equally responsible to prepare. So this is all we need to do. तो कल जब रिजल्ट लेने हम आए, और एक और बात है, हम मार्क्स के लिए इतना हमारे में ऑब्सेशन ना हो। Somehow we are also observing some kids are doing better and better, but somehow we are not happy. Suppose my child has got 80 out of 100, or out of 80 he has got 70. तो मैं बहुत अपसेट हूं, why 70, why not 80 out of 80? So I am, because कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग है ना, बड़ी सहज होनी चाहिए। हम एफर्ट्स पर फोकस करें, मार्क्स पर नहीं, प्लीज। We need to emphasize and we need to focus on efforts. हम पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, करते जाएं। लेकिन हम क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं जब मार्क्स नहीं आते तो हम शैटर्ड हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और हम जो है परेशान होने लगते हैं। अरे कोई बात नहीं, इट्स बेटर नेक्स्ट टाइम। आई नीड टू सी वेयर आई वेंट रॉन्ग, मेरे से क्या गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई। गलतियां हो सकती हैं, इट इज नॉट एन इशू। We are humans, to err is human. But yes, गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए।
सो अगर एक बारी मेरे 80 में से 70 आए हैं या 65 आए हैं, 60 आए हैं या 50 आए हैं, 40 आए हैं, 30 आए हैं, इवन लेस देन 30, हर पर्सन को उस पर चिंतन और मनन करना है। जिसके 20 आए हैं वो अपने आप को कहे, अगर मैंने शुरू से तैयारी की होती, मैडम की बात को सुना होता, क्लासेस को अटेंड किया होता, तो ऐसे नहीं होता। जो 40 वाला बच्चा है वो कहता है मैं इससे भी और बेटर कर सकता हूँ। 50 वाला बच्चा है वो कहेगा मैं और इससे बेटर कर सकता हूँ। 60 वाला कहेगा मैं और भी बेटर कर सकता हूँ। लेकिन वो सरलता और सहजता के साथ, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए मार्क्स का। ये रैट रेस नहीं होनी चाहिए मार्क्स की। ये परेशानी लाता है। लेकिन अगर खुशी खुशी हम पढ़ेंगे, खुश होकर के पढ़ेंगे, खुश होकर लर्न करेंगे और अपने रिजल्ट को भी सरलता और सहजता के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो उससे हम फ्यूचर में और बेटर कर पाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू बी हैप्पी बीइंग्स। हमें हैप्पीनेस चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी लाइफ बेहतर हो सके, हम ज्ञानवान बने, हम प्यार वाले बने, हम दूसरों की हेल्प करें, इस सृष्टि को और सुंदर बनाएं। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। इंग्लिश है तो लैंग्वेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारी लैंग्वेज जो हम बोले वो इतना सुंदर बोले। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ये जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, हमारी लैंग्वेज ऐसी हो जो सर्वत्र प्यार ही प्यार बिखेर। इसी तरह से मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। मैथ्स का मतलब है ट्रूथफुलनेस। भाई 2+2 हमेशा 4 ही होता है। तो ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है। पूरे ब्रह्मांड का एक मैथमेटिक्स है, मेरी बॉडी का मैथमेटिक्स है। इसके लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में इतने केमिकल्स, इतनी सारी ऊर्जा काम कर रही है, उसको मुझे जानना है। और भी कितनी सारी चीजें जाननी है कि हाउ दिस यूनिवर्स इज वर्किंग, सो दैट आई कैन मेक इट मोर ब्यूटिफुल। इतनी सारी चीजें तो इजाद हो गई, इन्वेंशंस हो गई, डिस्कवरीज हो गई। नाउ व्हाट मोर आई कैन डू फॉर द वेल-बीइंग ऑफ ऑल बीइंग्स ऑन दिस यूनिवर्स? दिस शुड बी माय पर्पस ऑफ लर्निंग। द सेम वे हम कॉमर्स पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, ताकि हम जाने लोगों को। हिस्ट्री पढ़ते हैं, पास्ट में क्या हुआ, क्या हमसे गलतियां हुई, ताकि उन गलतियों को हम ना करें और जो हमने अच्छा किया उससे सीखें, उसको रिपीट करते जाएं और जो हमने गलत किया उसको करेक्ट कर दें। यही लर्निंग का यही है। और जहां तक हम पेरेंट्स और टीचर्स का सवाल है, हम अपना टाइम बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करने में लगाएं। हम जितने रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चा भी उतना रिस्पॉन्सिबल होगा। हम जितने ऑनेस्ट होंगे बच्चा भी उतना ऑनेस्ट होगा। हम जितने हार्ड वर्किंग होंगे बच्चा भी उतना हार्ड वर्किंग होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप बच्चों से चाहते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, बच्चे वैसा करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी बातें जो है, कल मेरा पेरेंट से विनम्र निवेदन है कि हम रिजल्ट को पॉजिटिवली लें। और कई बार बच्चों का ये कहना होता है घर जा करके
मैं भी अपने घर में बच्चों को देखती हूँ, जिसे पूछते हैं हम कितने मार्क्स आए, कितने आए, अच्छा जी, उसका नेक्स्ट होता है मैडम ने नंबर ही नहीं दिए। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैडम ने नंबर किस पर दिए होंगे, जो आपने लिखा होगा। और अगर मैम ने नंबर नहीं दिए, उसका क्या पर्पस होगा, क्योंकि मैम चाहती है कि जो आपने गलतियां की हैं, क्योंकि आज अगर मैम ने आपको जरूरत से ज्यादा आपको मार्क्स दे दिए, आप सीखोगे नहीं, बिकॉज द मैम एंड सर, दे वांट यू not to commit such mistakes in future। और आपकी आंसर शीट्स को माइन्यूटली असेस किया जाता है, इवेलुएट कर दिया जाता है, ताकि जहां पर आपने छोटी से छोटी गलती भी की है वो भी आप ना करें। इसीलिए तो परीक्षा होती है, कि परीक्षा इसीलिए है कि आप तक जितना सीखा आपने, आप जब लिखते हैं तो टीचर उसको इवेलुएट करता है, वो ये जांच करता है कि आपको आया कि नहीं आया, और कितना आया, कहाँ कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं, और फिर आपको बताया जाता है, फिर आप उसको देखते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द किड्स दे डू नॉट टेक दोज थिंग्स इन ए पॉजिटिव मैनर। मैडम ने कर दिया, टीचर है, टीचर को मालूम है ना, यू डू नॉट नो। लेकिन वो बच्चे उस समय सोच रहे हैं कि हमें पता है। अब या तो एक तरीका हो, बच्चा ही कॉपी को जांच कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। कॉपी की जांच, आंसर शीट की इवैल्यूएशन तो टीचर ही करेगी, बिकॉज टीचर्स आर ट्रेन्ड। और उनका डीपर पर्पस है, डीपर पर्पस क्या है, कि बच्चे को भविष्य के लिए प्रिपेयर करना। बिकॉज जितना टीचर, बच्चे की उम्र कम है, और कम उम्र में जितना टीचर हार्ड टास्क मास्टर होगा, जितनी उसकी गलतियों को बताएगा, बच्चा उतना ही ज्यादा इवॉल्व करता हुआ एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल, उसकी गलतियां उतनी कम है, ये तो नहीं कहूंगी कि परफेक्ट हो जाएगा, ओनली द गॉड इज परफेक्ट, यू नो। यस वी कैन बी, बट देन we need to be ready for that rigorous training. Okay, so this is what we thought, that we must talk to you, that tomorrow we would be sharing the result with you all. So parents, please take it in a positive way. We would be also, because we have discussed at our length, you know, that हमें आगे की क्या करना है, आगे कैसे तैयारी करानी है बच्चों को। और एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि जब भी टीचर का फोन या मैसेज जब वो शेयर करती है, अब तो एक और प्लेटफॉर्म, और ये भी नहीं कह रहे कि हम स्कूल में बच्चा रुके, हम कह रहे हैं कि घर चला जाए बच्चा शाम को, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। हम टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करें ना। हम व्हाट्सएप ये सब पे अपना एनर्जी लगाते हैं, अगर हम इसी प्लेटफॉर्म को लर्निंग के लिए यूज करें, टीचर जब समझा रही है उसको सुने, और फिर मैं सम्स करूं, रिवाइज करूं, प्रैक्टिस करूं, तो ये प्लेटफॉर्म कितना यूजफुल है। अब आप देखिए, आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठी हूँ, बट हम लोग इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि प्लीज प्लीज रिजल्ट वाले दिन हम ज्यादा बच्चों को ना डांटे, रादर हम ये सीख लें, और अपनी दिनचर्या को हम देखें कि क्या हम रोज बच्चों को रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं। ये हम बातों को देखें। और एक आज के युग में डिजिटल फास्टिंग हम जरूर करें, पेरेंट्स और टीचर्स, डिजिटल फास्टिंग इज वेरी रिक्वायर्ड। इस टेक्नोलॉजी का, व्हाट्सएप का, जूम का, गूगल मीट का प्रयोग हम केवल लर्निंग के लिए करें, चिट चैट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं करें।
मनोरंजन के लिए अगर इसका करेंगे तो एडिक्शन बहुत बुरा है, तो डिजिटल फास्टिंग करें। अनाप शनाप मैसेजेस को हम ना शेयर करें, अपना टाइम वहां ना लगाएं, अननेसेसरली रील्स बनाने में, रील्स देखने में अपनी एनर्जी को ना लगाएं। इट्स अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म, वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी is. It has really changed the life of the people. हमारी बहुत एनर्जी सेव हो रही है इससे, तो वो एनर्जी कहाँ लगाएं? हम लगाएं लर्निंग में। बच्चों को बोलिए कि इस टूल का उपयोग आप केवल और केवल लर्निंग के लिए करें, बाकी डिजिटल फास्टिंग जरूर करें। आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से हम इन दिनों में डिजिटल फास्टिंग भी करें कि हम अनाप शनाप रील्स को ना देखेंगे, ना आगे फॉरवर्ड करेंगे। और जब आप अपने ऊपर रोक लगाएंगे तो स्वतः ही बच्चे सीख जाएंगे कि ठीक है, आप भी किताब लेके बैठो, मैं भी किताब लेके बैठता हूं या बैठती हूँ, ठीक है ना, उतनी देर के लिए। या आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करें, स्टोरीज उनके साथ शेयर करें, ताकि उनकी कुछ लर्निंग हो, वो रिस्पॉन्सिबल बने, वो ऑनेस्ट बने। अपने बचपन की स्टोरीज उनके साथ शेयर करें, आपने कैसे माइलस्टोन्स को अचीव किया वो शेयर करें आप अपने बच्चों से। दे वुड लव टू हियर दो स्टोरीज। उससे बच्चों की बहुत ग्रूमिंग होती है, उनके दादाजी के बारे में, दादी जी के बारे में वो शेयर करें। इतनी एनलाइटेंड सोल्स हैं, उनके बारे में शेयर करें। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में शेयर करें, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के बारे में शेयर करें। उनके अंदर पेट्रोटिज्म की फीलिंग लेकर आए, उनसे सफाई के बारे में बात करें, हाइजीन के बारे में बात करें। तो स्वतः ही घर में ऐसा माहौल बनाए और बच्चों को स्पेस दें। हम स्पेस देना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इस तरीके से, और कल जब आप आए तो मेरा आपसे ये बहुत रिक्वेस्ट है कि हम बहुत ज्यादा बच्चे को डांटे नहीं, बल्कि उसको पॉजिटिव स्पिरिट के साथ लेकर के आने वाली टर्म के लिए हम टारगेट सेट करें। अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके बच्चों के साथ बैठें, ताकि अगली बारी जब रिजल्ट आप लेने आए तो वहां पर आपको बेटर रिजल्ट बने। और ये बिल्कुल श्योर है कि जब हम अपने ऊपर काम करेंगे, जब हम अपनी दिनचर्या को बदलेंगे, तो हमें आउटपुट भी डिफरेंट और बढ़िया मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा हमारे सबके ऊपर कृपा करे, और दशहरा और विजयदशमी की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड all of us will pray to Almighty for the well-being of all beings on this universe. With these words, I thank you all. I thank you all, and God bless us all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your thought-provoking words. Your profound wisdom and inspiring message will be a timeless source of guidance for all of us. Indeed, the collaboration between parents and teachers provides a strong foundation for children's growth and empowers them to reach new heights. Acknowledging the good that you already have in your life is the foundation for all abundance. Today, I, Shifali, feel honored and privileged to get the opportunity to propose vote of thanks. First of all, I offer my most sincere thanks to the Almighty for bestowing His grace upon us and making today's session a grand success. My bottomless gratitude to Mother Earth for blessing us with eternal bounties. My sincere and gracious thankfulness to all the gurus who enlighten the path of their pupils.
My next word of thanks goes to revered principal of the Vidyalaya, Ma'am Anupma Bhardwaj, for her constant support and guidance that radiates a source of energy within us. My exuberant thanks to all the parents for their benign presence. Thank you all.